الحمد لله الذي جل وعلا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر الآية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز مصلیان کرام، ہم نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کیا ہے. اس کلمے کا تعلق ہم سب انسان اور جنات کے ایمان سے، توحید و رسالت سے ہے. اور قرآن کریم کی آیت اس میں حضرت حق جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے اپنے تمام بندوں کے لیے کہ تم سب مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ لو، تھام لو، ایک ہو جاؤ، اتفاق اور اتحاد سے رہو، انتشار کے شکار نہ بنو. اسلام کی بنیاد، ایمان کی بنیاد، مذہب اسلام کی اساس اللہ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، اور صرف گواہی نہیں دینا بلکہ ان کی جملہ فرمودات پر، جملہ احکامات پر اپنے آپ کو عمل کرانا، دل سے ماننا اور عمل کے ذریعے اس کا اظہار کرنا. عمل کے ذریعے جیسے اللہ نے نماز فرض کیا، نماز کے وقت نماز پڑھی جائے، روزہ فرض کیا، رمضان مل جائے، صحت مند ہو تو روزہ رکھا جائے، مال دیا ہے اللہ نے تو حج کیا جائے، اور مال دیا ہے تو اللہ نے تو زکات بھی دی جائے. اس کے علاوہ جہاں جہاں جن جن چیزوں سے اللہ اور رسول نے کرنے کا حکم دیا ہو کرا جائے اور منع کیا ہو تو رکا جائے. دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر: ما آتاکم الرسول فخذوہ، تمہارے نبی جن جن چیزوں کو لینے کا، کرنے کا حکم دے تو اس سے لو اور کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے روکیں ان سے رک جاؤ. آج عالمی منظر نامے کو اگر دیکھا جائے تو امت اتفاق سے رہنے کے بجائے انتشار کی شکار ہے. اس امت کا جو شیرازہ بنا تھا، جو امت کی اجتماعیت تھی، جس کے ذریعے امم سابقہ اور تمام قومیں فلاح و بہبود کی منزل کو طے کرتی ہیں، ہم نے اختلاف سے، انتشار سے دور رہ کے اس چیز کو ختم کر دیا. انتشار سے، اختلاف سے سب سے بڑا نقصان جو یہ ہوتا ہے وہ کسی قوم کی ہیبت کو، اس کے روب اور دبدبے کو اللہ چھین لیتا ہے. اور اتحاد کے ذریعے جو قوم کا دبدبہ ہوتا ہے، جو ہیبت ہوتی ہے، اسے اللہ برقرار رکھتا ہے اور یہ بڑھتا بھی جاتا ہے. جب ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا بیت اللہ ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہماری مذہبی جتنی چیزیں عبادت کی ہوں ساری کی ساری چیزیں ایک ہیں، نمازیں ہماری ایک ہیں، نمازیں ہم سب ایک طرح پڑھتے ہیں، تو پھر انتشار کس چیز کو؟ اللہ اسی چیز کو قرآن کریم کے اندر کہتا ہے ایمان والوں سے کہ اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی کو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام پر ایک ہو جاؤ، اللہ کے نام پر ایک ہو جاؤ. آج
अल्लाह। तो सोचो जरा, गौर करो, अपने गिरबान में मुंह डाल के सोचो, क्या हमारे पास इतना भी ईमान नहीं बचेगा जो राई के दाने के बराबर या उससे भी कम हो? हालात वो बन रहे हैं, हालात वो आ रहे हैं कि ऐसा होने वाला है जो ऐसा भी इतना भी ईमान नहीं बचेगा, और बचाने वाले चंद होंगे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लेगा वो जन्नत में चला जाएगा। मोमिन कभी ताज़ीब के लिए जहन्नम नहीं जाएगा, तस्कील के लिए जाएगा। ईमान वाला जहन्नम जाएगा, लेकिन तस्कील कहते हैं लोहे से मूर्छा छुड़ाने को, हमको पाक करने के लिए अल्लाह आग में डालेगा। और ताज़ीब कहते हैं अज़ाब के लिए। तो जन्नत तो ईमान वालों के लिए है जिसने सच्चे दिल से कलमे का इकरार किया है, लेकिन उस कलमे के इकरार पर कम से कम उसके तकाजे पर भी तो हमारा अमल हो। आज इस दुनिया के अंदर जितने फिरके हैं, जितने मसलक हैं, जितने मशरब हैं, जितनी चीजें वजूद में हैं, सबका नहज अगर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है तो वो जन्नती है। लेकिन हर फिरका दूसरे को जहन्नमी कह रहा है, अपना दावेदार है कि हम जन्नती हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है मालिकी यौमिद्दीन, रोजे जज़ा के मालिक तो हम हैं, इंसाफ के दिन के मालिक तो हम हैं। फैसले तुम्हारे हाथ में नहीं दिए जो तुम दुनिया में फैसले करते फिर रहे हो। अगर किसी आदमी से नाम पूछा जाता भाई तुम कौन हो, अगर रिश्तेदारी और कराबतदारी का मसला है तो कोई शेख बताता है, कोई पठान बताता है, कोई जो है मुगल बताता है, कोई अंसारी बताता है, कोई मंसूरी बताता है। न जाने कितनी बिरादरियां अपने कस्ब से, अपनी जो है हाथों से, अपने दिमाग से हमने दुनिया में बना रखी है। तिजारत को पेशा कर दिया, पेशे को, तिजारत को अपनी बिरादरी बना दिया। रुई की धुनाई कर रहा है तो कोई दूसरी बिरादरी का है, कपड़ा सिल रहा है तो कोई दूसरी बिरादरी का है, और कोई लकड़ी वाला सामान बना रहा है तो दूसरी बिरादरी का है। किसने ये जाविया, ये जाब्ता किसने बनाया? और इस्लाम की तरफ आओ तो कोई कहता है हम सुन्नी हैं, हम देवबंदी हैं, हम शिया हैं, हम राफजी हैं, हम अहले हदीस हैं, हम मुअतज़िला हैं, हम खवारिज हैं। मुसलमान कोई नहीं कहता कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह ने एक बिरादरी बनाई है, सबको आदम से अल्लाह ने बनाया, वल आदमु मिनत तुराब, और आदम को मिट्टी से बनाया। बहुत बड़ा शजरा वाला, बहुत बड़ी बिरादरी वाला, बहुत बड़ी नाक वाला निकालो इस दुनिया से और उससे कहो कि जरा अपना शजरा ले जाए आदम के अलावा किसी से, तो या तो इब्लीस मिलेगा या तो फरिश्ते मिलेंगे। जब अल्लाह ने दुनिया को बनाना चाहा था और दुनिया बनाई थी, और दुनिया बनाने के बाद जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था, और वहां पर सिर्फ दो ही बिरादरी थी, आदम थे, इब्लीस था और फरिश्ते थे, और कोई बिरादरी अम्मा हुआ भी नहीं थी। इब्लीस को अपनी इबादत पर, अपनी रियाजत पर, अपनी तक़वा और तहारत पर घमंड था, इसलिए तो अलग हो गया। वो झुकेगा नहीं, टूट जाएगा। मुतकब्बिर झुकता नहीं है, टूट जाता है। जिस तरह साखू की लकड़ी मजबूत और ये ठोस होती है और बड़ी कीमती बिकती है, ऐसे वो लकड़ी जो घूम जाती, क्या नाम है उसका, कुर्सियां वगैरह जिससे बनाई जाती हैं, वे बड़ी कीमती लकड़ी होती है। वो ये कीमती इसलिए है कि मजबूत है, और वो कीमती इसलिए है कि धागे की तरह घूम जाता है। ये हद से ज्यादा सख्त है, वो हद से ज्यादा नरम है, लेकिन उसकी नरमी से वो टूटता नहीं है। तो इब्लीस को तकब्बुर सवार था, इसलिए अल्लाह ने उसे भगाया अपने दरबार से।
हट कर अपना बाप को ले आए। फिर बताए आदम की क्वालिटी कैसी थी। आदम तो मिट्टी से थे। खुद हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमामुल अंबिया व मुरसलीन हैं, ये भी रिश्ता अपने बाप में, दादा में सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को बताते हैं। और हम कौन सी बड़ी बिरादरी हो गए जो अलग हो गए। अंसारी दूसरी बिरादरी से आया है और हम आदम से आए हैं। ये हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां जो इर्तिदाद के दहाने पर हैं, दूसरी कौमों के साथ निकाह करने पे मजबूर है, उसकी अगर तमाम वजूहात हैं तो एक वजह ये बिरादरी वाला नासूर भी है, ये बीमारी है। दूसरी बिरादरी में रिश्ते अच्छे हैं लेकिन वो हमारी बिरादरी का नहीं है, इसलिए हम लड़की का निकाह नहीं करेंगे। बाहर जाए वो अलग है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई बड़ी नाक और बिरादरी वाला इस कायनात में कोई नहीं पैदा हुआ है। आपने 11 शादियां की हैं, 2 शादियां तकरीबन अपनी बिरादरी में की हैं, बकिया जितने कुंबा कबीले थे उनसे कर ये नमूना बताया है कि जिसने कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की तौहीद के बाद अगर हमारी रिसालत का इकरार किया है तो उसे चाहिए कि नबी ने सिर्फ फरमाया नहीं कि सब बिरादरियों में निकाह कर लेना, बल्कि खुद करके दिखाया है। खुद अहकमुल हाकिमीन के सुल्ताने कौनैन दोनों जहान के बादशाह थे रब्बुल आलमीन की तरफ से, लेकिन निकाह गुलामों के साथ किया है, बानियों के साथ किया है और सईबात के साथ किया है। और मक्के के अंदर जो मुतल्लका औरतें थीं जिनको तलाक हो जाता है, समाज गिरी निगाहों से देखता है, उन औरतों से निकाह करके एक नजीर और मिसाल पेश कर दिया रसूलुल्लाह की रिसालत को मानने वालों के लिए। ये तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो। अल्लामा इकबाल कहते हैं ये तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। कौन बताता है कि मुसलमान है। अब तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें छोड़ दीजिए, अल्लाह के घरों को हमने नहीं छोड़ा है। अल्लाह के वन्नल मसाजिद लिल्लाह, अल्लाह कुरान में कहता है मस्जिदें हमारा घर है, हमारे लिए है। न मस्जिद के अंदर हमारे अलावा किसी को पुकारो, न दीवार पर। घर मेरा है तो नाम किसी और का कैसे? यह घर किसका है? अभी इस मस्जिद पर लिख दिया जाए देवबंदी मस्जिद, यह घर किसका है? अल्लाह का। तो पता लगाओ अल्लाह देवबंदी है क्या? अगर अल्लाह देवबंदी हुआ तो सुन्नियों का अल्लाह कौन है? किसी मस्जिद पर लिख दिया गया बरेलवी मस्जिद। मस्जिद अल्लाह का घर है और नाम टका किसी का। तुम्हारे मकान पे हम अपने नाम का कतबा लगा दे, तुम बर्दाश्त करोगे? आपकी दुकान पे हम अपने नाम का मोनोग्राम चिपका दे, आप बर्दाश्त करोगे? जितनी ताकत दुनिया की अल्लाह ने तुम्हें दे रखी है, हुकूमत से, डंडों से, पैसों से, फौजों से, अपनी कुंबा कबीला और बिरादरी की लड़ाइयों से हमसे निपटने के लिए तैयार हो जाओगे, इसलिए कि ये घर रब का है तो बैनर और बोर्ड अल्लाह ही का होना चाहिए। हमारी इस मस्जिद का अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी इस मस्जिद का मैंने जब नक्शा बनवाया है, तहदीसे नेमत तकब्बुर नहीं है, तहदीसे नेमत के तौर पे बता रहा हूँ। 32 लाख रुपये का नक्शा पास किया इंजीनियर ने, और मैंने अपने किसी मुताल्लिक से कहा कि ये मस्जिद है, मदरसे की बात की, बोला मस्जिद बताओ कितना खर्चा है? 32 लाख। उसने कहा, वो औरत थी, उसने कहा कि 32 के बजाय मौलाना हम आपको 50 लाख दे देंगे, लेकिन मस्जिद पर हमारा नाम लिखो। क्या लिखो? बहुत लोगों से बता चुका हूं। उसने कहा मस्जिद हमारे नाम से कर दो तो हम आपको 50 दे देंगे। मैंने यही कुरान की आयत सुनाई कि मस्जिद अल्लाह का घर है, इसके अंदर भी नहीं नाम लिया जाता है किसी का, और जब अंदर नहीं लिया जाता है तो बाहर हम नाम नहीं चिपकाएंगे। जो रब जिसका घर बनाने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा गैरत वाला है, बहुत बड़ा मालदार है। उसने झाड़ू लगाकर दुनिया जो फेंकी है दुनिया में, तो तुम जैसे चंद सेठ बने घूम रहे हो। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, परवरदिगार कहता है हमारी फेंके हुए सिक्कों से तुम दुनिया तामीर करते हो। वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन के खजानों की चाबियां तो हमारे हाथ में है। जिसका घर वो बना लेगा, गरीब नहीं है। ना हम तुम्हारा नाम लगाएंगे
दुकान पे किसी का नाम देखा, चाहे होटल पे कि अहले हदीस का होटल है, कहीं देखा कि ये देवबंदियों का होटल है, ये जमातियों की दुकान है? कोई दुकान पर अपने नाम मसलक का नहीं लगाता है, इसलिए कि बहुत बड़ा अक्लमंद है, ये बहुत बड़ा अक्लमंद है। दुनिया का बनाव बिगाड़ तो समझ में आता है, ये दीन का बनाव बिगाड़ समझ में नहीं आता इसको। ये बदमाश है। युखादिऊन अल्लाह, अल्लाह कहता है कि ये बंदे हमको धोखा दे रहे हैं। वहुवा खादिऊहुम, ये खुद धोखे में पड़े हुए हैं। चाय के होटल पर अगर लगाएगा कि ये देवबंदी होटल है, तो सुन्नी चाय पीने नहीं जाएगा, वो 5 रुपया नहीं आएगा, इसलिए बैनर नहीं लगाएगा। क्लॉथ हाउस देखा, किसी रिजवी क्लॉथ हाउस बना है, कपड़े की दुकान फला साहब की है, अगर नाम का इजहार कर दिया तो दूसरे मसलक वाला वहां नहीं जाएगा, तो नुकसान होगा। अगर मस्जिद में कतबा लगाया ये फलानी मस्जिद है, तो दूसरा नमाज सड़क पे पढ़ेगा लेकिन मस्जिद में नहीं आएगा, ये किसका नुकसान हुआ? न मस्जिद में आता, जमात से नमाज पढ़ता, 27 गुना नमाज का सवाब मिलता उसे। ये सवाब से जो कटवाया तुम इब्लीस हो। नेकियों से रोकना और नेकियों से रोकना, नेकियों के ज़राए को बंद करना, यह इब्लीस का काम होता है। जमात छुड़ाना किसका काम? हम नहीं कहते, अल्लाह कहता, शैतान का काम है। तो मस्जिदों, अल्लाह के वास्ते इतने बड़े हाकिम न बनो कि मस्जिदों को अपनी जागीर और गुलामी के जंजीर में जकड़ लो, बल्कि अल्लाह के घरों को अल्लाह के लिए खोल दो। हर बंदा अपने बेटे का जब नाम रखता है, बच्चा बोलने के लायक नहीं होता है, तो उस बेटे का नाम बाप बताता है। हम तमाम बंदे अल्लाह और परवरदिगार के पैदा करदा मखलूक हैं, हमें खुद नहीं आता हमारा नाम क्या है। अल्लाह से पूछो कि अल्लाह तूने हमें इस दुनिया में बनाया है, पैदा किया है, हसीन बनाया है, हमको खूब मुतदिल बनाया है, ऐसा जबरदस्त बनाया है कि आईने के सामने खड़े होते हैं तो आपकी तारीफ बिना झिझक जबान से निकल जाती है। अल्लाह जरा ये बता हमारी बिरादरी क्या है, हमारा नाम क्या है? अल्लाह फरमाता हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, ऐ मेरे बंदो हमने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। अल्लाह कहता है मेरे बंदो तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। लेकिन जब बिरादरी रिश्तों में आओगे तो शेख सुन्नी मिर्जा मुगल पठान बताओगे, और मजहब में जाओगे तो सुन्नी देवबंदी बरेली बताओगे। मुसलमानों तुम्हें हो क्या गया है? एक हो जाओ कलमे की बुनियाद पर। बरेली भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, देवबंदी भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, शिया भी यही कहते हैं। वो आप फसल मानते हैं, लेकिन तौहीद पर, रिसालत पर उनका यकीन है। इस कायनात के अंदर जितने कलमा गो हैं, सबका मजहब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। फुरुआत में, जुज़ियात में, अंदर सुन्नत में, नफिल में और इबादतों की अदा करने में सबका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन तौहीद और रिसालत में सिर्फ अहले हुनूद का और मुसलमानों का झगड़ा है। तो जब कलमे की बुनियाद पर अल्लाह ने हमें सबको एक किया है, जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा है नमाज पढ़ो, नमाज जानबूझकर छोड़ना कुफ्र है, छूट जाए गुनहगार हो गए, तौबा करो, माफ है, अदा करो, हो जाएगी। रोजा फर्ज है, अल्लाह ने कहा अगर पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे भूल से माफी मांगो, अल्लाह का कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, उसका कज़ा है, अदा कर लो। तमाम इबादत को जानबूझकर छोड़ना कुफ्र है, अनानियत में छोड़ना कुफ्र है, अनादानी में छूट जाए तो गुनाह है। इसी तरीके से जहां रब ने तमाम अहकामात का हुक्म दिया है, उन हुक्म को बजा लाना फर्ज है। वहीं परवरदिगार ने कहा एक हो जाओ, उसी रब ने कहा एक हो जाओ, तो एक होना भी फर्ज है। इबादत के लिए जिंदा रहना जरूरी है, और जिंदा रहने के लिए एक होना जरूरी है। अभी 3 आदमी होते तो जुम्मा की नमाज ना हो पाती। जुम्मा की नमाज फर्ज उस वक्त होती है जब 3 सबसे ज्यादा हो जाए। अगर एक नहीं होगे तो जुम्मा नहीं है। और जुम्मा क्या है? एक नहीं होगे, काबा में अल्लाह क्यों जमा करता है सबको? उम्रे पर तो फर्दन साल भर लोग जाते रहते हैं। एक मौसम में, एक टाइम पर परवरदिगार का कुछ मकसद है बुलाना। इसलिए अजीज दोस्तों, हम इशारों में बड़ी बात कह देते हैं कि ये वक्त एक रहने का है, इत्तिहाद का है, इत्तफाक का है, और जिस
علیہ وسلم کا جو ہم اجتماعی طور پہ نہیں برباد ہو رہے ہیں، ہم قسطوں میں جائیں گے۔ اگر زندہ رہنا ہے عبادت کے لیے، تدریس کے لیے، اپنی حسین زندگی کے لیے، تو اتحاد بہت ضرورت کی چیز ہے۔ ایک رہیں، اپنے اختلافات اپنے گھر میں رکھیں، مسلک کا اختلاف اپنے ممبر پر رکھیں، لیکن کم سے کم کوئی اللہ کے گھر میں آئے اسے بھگایا نہ جائے، اس کا استقبال کیا جائے۔ بھولا ہوا ہمارا بھائی آیا ہے، اس کا سواگت کیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منافقوں کا بھی استقبال کر لیا۔ ایک منافق نے مسجد نبوی میں پیشاب بھی کر دیا، اب صحابہ نے اس کو نکیر کرنے چلے تھے، آقا نے فرمایا اس کو کر لینے دو۔ عزیز دوستو، اس لیے ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام یہاں پر جمع ہوتے ہیں، باہر جاتے ہیں، مسلکی باتیں نہ کی جائیں۔ مسلکی جو مسجدوں میں لگائے ہو، اگر مسجدوں کے ذمہ دار ہیں یا اللہ نے ان کو زبان دیا ہے تو ان کے ذمہ داروں سے کہیں کہ اللہ کا گھر ہے، اس کو آزاد کرو، مسلک کی بنیاد پر اس کو نہ استعمال کرو، اللہ کے گھر کو آزاد کرو، کھولو اس کو۔ کوئی بھی ایمان والا یہاں پر آ اور جا سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے۔ جب اللہ کے گھروں کو ہم آزاد کریں گے، آزادی کے ساتھ عبادت کریں گے، اللہ کی رحمت ہم پہ متوجہ ہوگی، تو دنیا کے سلاطین ہمارے لیے نرم ہو جائیں گے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اور آپ حضرات کو خود عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔